اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس ویڈیو میں جو وراثت کلالہ میں رہ جاتی ہے اس کے متعلق آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک سے سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس نعمتوں سے، اپنی نعمتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مال و دولت اور رزق سے ہی قائم رکھا ہے، اور دنیا کا وجود رزق کے ذریعے ہے۔ اور اسی رزق کے متعلق سورہ نساء کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور اس رزق کے متعلق اللہ نے جو قانون بیان کیے ہیں اس کے متعلق ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم پڑھیں گے کلالہ کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی شان عظیم کے متعلق انشاءاللہ ہر ویڈیو سے پہلے ضرور پڑھتے رہیں گے، تاکہ ہمارے ذہن میں پیارے قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے جس پیارے قرآن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک سند ہے ہمارے پاس، تو اس کو ہم انشاءاللہ ہمیشہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے، ان کی شان عظیم کے متعلق، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تو قرآن پاک صورت احزاب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 72 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ تو اس آیت کے بیچ میں بڑے پیارے انداز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے، لیکن ہمارے مالک نے ہمیں سمجھایا، لیکن ہم ایسے بے ضمیر ہو چکے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ اپنی ذات سے خود ظلم کر رہے ہیں، اپنے مالک سے اپنے آپ کو دور کر کے، کہ اپنے مالک کو ہم نہیں مانتے کہ آپ ہمارے مالک ہیں، اور ان کی ملکیت سے حالانکہ ہم کسی صورت نہیں نکل سکتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تیرا وجود کیا ہے اس کائنات کے بیچ میں، اس کائنات کے اندر انسان کا وجود، اس آفاق کے بیچ میں، زمین و آسمانوں کے بیچ میں تیرا وجود کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتا، کچھ نہیں ہے تو، لیکن عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو یہ کہا کہ یہ ہم تمہیں امانت دے رہے ہیں، یہ قرآن، اگر تم نے اس کی میں خیانت کی تو اس کی یہ سزا ہوگی، تو کیا تم اٹھا لو گے اس کو؟ تو انہوں نے کیا کرا، فَآبَيْنَا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا سچائی کی بات کی۔ زمین و آسمان کہہ رہے ہیں، فَآبَيْنَا، زمین، آسمان اور پہاڑ سب کام کر کہتے ہیں، فَآبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے کہا پروردگار ہم اس امانت میں خیانت کریں، ہماری یہ جرت ہی نہیں، ہماری یہ جرت ہی نہیں، فَآبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ ہم اس کی امانت میں خیانت کریں، اس کی خیانت کرنے کا بوجھ اور اس کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وَأَشْفَقْنَا، وہ شفق ہو گئے، ڈر گئے، وَأَشْفَقْنَا، ڈر گئے اس کی اس امانت میں خیانت کی صورت میں سزا ملنے سے، اشفقنا منہا، اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لیکن جاہل اور ظالم انسانوں نے یہ اس قرآن کو چھوڑ کر، اس امانت سے دور ہو کر اپنے آپ کو وہ کیسے برداشت کریں گے، وہ کیسے انہوں نے اس کو چھوڑا ہوا، کون سے منہ سے اور کس طریقے سے وہ قرآن سے دور ہو کر اس امانت میں خیانت کر کے اس کو چھوڑ کر کیسے اس کے عذاب کو برداشت کریں گے؟ کریں یا نہ کریں ان کو عذاب ملے گا، تم وہاں چیخو یا برداشت کرو، ہر حالت میں قرآن سے دور رہنے والا تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور نہ تمہاری چیخو پکار پر کسی قسم کی ترس کھایا جائے گا، اور نہ تمہارے صبر کرنے پر
तुम्हें अगर सब्र करना चाहोगे तो सब्र भी ना कर सकोगे, और मरना चाहोगे तो मौत भी ना आएगी। तो मौत को पुकारोगे तो अल्लाह फरमाएगा आज एक मौत नहीं 1000 मौतों को पुकारो। तो इसलिए दोस्तों ये कुरान बहुत बड़ा है, हमारी जिंदगियों का एक रोशन चिराग है, हमेशा के लिए रहने वाले जिंदगी का। आओ आज हम मिलकर अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने रिश्तेदारों के साथ, ये कभी रिश्ते खत्म नहीं होने हैं, मरने के बाद भी ये रिश्ते खत्म नहीं होने हैं, तो हम कुरान के जरिए इस दौलत अजीम के जरिए अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए, हमेशा की जिंदगी में बदल कर हमेशा हमेशा के लिए एक सलामती की जिंदगी हासिल कर दें। तो अल्लाह ताला ने, आज हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला के हुक्म के बारे में कि कलाला से मुतल्लक अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि कलाला कहते किसको हैं। कलाला कहते हैं ऐसी विरासत को कि ऐसा शख्स जिसकी ना बीवी हो, ना बच्चे हो, ना वालदैन हो, तो वो शख्स अगर मार जाता है तो उसकी जो जायदाद है वो कलाला में जाती है। तो इस दिल के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के बीच में क्या हुक्म दिया है। अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने सूरत निसा आयत नंबर 12 के बीच में इसका एक इब्तदाई हुक्म एक छोटा सा तफसील दिया, और इसके बाद जो इसकी छोटे से अजमाली खाका दिया, हमको एक हवाला दिया कलाला के बारे में। तो जो इसकी तफसीली हुक्म है वो आयत नंबर 176 सूरत निसा के बीच में इसके मुतल्लिक़ हमें पूरी तफसीली हुक्म दिया है। तो आयत नंबर 12 के बीच में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व इन काना राजुलन यूरसु कलालतन, अगर कोई मर्द है और उम्रातुन, अगर कोई मर्द या औरत हो ऐसी है कि जिनकी विरासत जो है वो कलाला में है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, जिसकी ना बीवी हो, ना औलाद हो और ना माँ बाप हो, खा वो मर्द हो या औरत हो, उसकी विरासत जो पीछे रह जाती है उसको कलाला कहते हैं। तो वलहु अखुन और उख्तुन, हाँ उसके लिए अगर बहन भाई हैं, अगर उसके लिए भाई हो या बहन हो तो फाले कुल्ले वाहिदिन मिनहुमा सुदुस हो, तो उनका छठा हिस्सा होगा। लेकिन ये इब्तदाई तौर पर अजमाली खाका है कलाला के बारे में जो आयत नंबर 12 के बीच में है। इसकी तफसील जो है वो आयत नंबर 176 के बीच में सूरत निसा ही के अंदर आती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुदुस इन कानू अक्सरा मिन ज़ालिका, फिर अगर इससे ज्यादा हूँ, अक्सरा मिन ज़ालिका इससे वो ज्यादा हूँ, तो फहम शुरकाओ फिस सोलो से, तो फिर वो तीसरे हिस्से में आते हैं, फिर उनका तीसरे हिस्से में शामिल होंगे शुराका, फिर वो शरीक आपस में उनकी शराकत हो जाएगी तीसरे हिस्से में। लेकिन मिन बाद वसीयतिन यू सबहा, लेकिन ये सब कुछ वसीयत के बाद होगा। आपने देखा कि हर बात में वसीयत 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 जहां भी आ रहा है वसीयत का बहुत जिक्र है कि मौत के वक्त आपने, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि हमने तुम पर वसीयत करना फर्ज कर दिया। लेकिन हमने वसीयत करनी क्या है, जब हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं तो हमारी मौत भी ऐसी आती है कि घुटने घसीटते हुए कोई किसी हाल में मर जाता है, को पता ही नहीं कि वसीयत क्या करनी है, होश नहीं होता है कि मरने के वक्त कि किधर हम जा रहे हैं किधर। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी, मौत और आने वाली जिंदगी के बीच में ऐसे लोगों की कोई बरकत नहीं दी है। कुरान पाक के बीच में 3 सलामतियां हैं। जिस दिन पैदा इंसान हो उस दिन सलामती है उसके ऊपर, जिस दिन उसको मौत है वो एक नई सलामती लेकर आए, और जिस दिन वो दोबारा जिंदगी में दाखिल वो नई सलामती के साथ। तो इसलिए हमने क्या वसीयत करनी है, हमें हमारा मरना ही बहुत बुरा है, हमारा जीना हमारा मरना, क्योंकि हमने कुरान को माना ही नहीं है, इसके हुक्मों को नहीं मानते, तो फिर हमें वसीयत कहाँ से नसीब होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यूसी बिहा अवदैन, आपने जो वसीयत करनी है वसीयत के बाद होगी या कर्ज की अदायगी के बाद, लेकिन यह कि गैर मुदारिन के इसने किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर इसने किसी की, इसमें किसी का वसीयत के बीच में किसी का वो नुकसान ना करे या उसने किसी का हक नहीं मार सकता, वो कुरान वो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ही उसके हक होंगे। वसीयतम मिनल्लाह, ये अल्लाह तुमको हुक्म देता है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह ताला जानने वाला है और वो बड़ा ही बर्दाश्त भी करने वाला, कि अल्लाह ही बर्दाश्त कर रहा है। अगर हम इस पे अमल नहीं कर रहे तो कल को हमें जरूर सजा मिलेगी। इसलिए अल्लाह ताला की बर्दाश्त से हमें फायदा उठाना चाहिए और हमें इस दुनिया में तौबा करनी चाहिए। अब दूसरा हुक्म जो तफसीली हुक्म है वो आयत नंबर 176 के बीच में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यस्तफ्तूनका, यस्तफ्तूनका लफ्ज़ फतवा से निकला है, इसी से
इसी को लफ्ज़ फतवा कहते हैं। का ज़मीर है मेरे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। यस्तफ्तूनका, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी, आपसे ये फतवा पूछते हैं, आपसे ये फतवा पूछते हैं, तो ए नबी इनको आप तफसील बता दें। कुल, आप इनको तफसील बता दें, कुलिल्लाहु, कि अल्लाह युफ्तीकुम, तुम्हें फतवा देता है, तुम्हें फैसला देता है, फिल कलालत, कलाला के बारे में। अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में ये फैसला देता है, इन उम्रून, अगर कोई मर्द हो, हलाका, मफौत हो जाता है, अगर कोई मर्द है हलाका, फौत हो जाता है, तो लैसा लाहू वलादुन, तो उसकी औलाद नहीं है, लैसा लाहू वलादुन, लेकिन उसकी औलाद नहीं है। कोई मर्द अगर फौत हो जाता है तो उसकी औलाद नहीं है। इन उम्र हलाका लैसा लाहू वलादुन, अगर कोई मर्द फौत हो जाता है उसकी औलाद नहीं है। वलाहू उख्तुन, वलाहू उख्तुन, उख्त है उसकी एक बहन है, वलाहू उसकी है, उख्तुन एक बहन है, तो फलाहन निस्फु, तो उसको उस मरने वाले भाई की जायदाद का आधा हिस्सा, वलाहु फलाहन निस्फु मा तरा का, जो उसकी जायदाद पीछे रह गया, जो विरासत का माल पीछे रह गया है। लेकिन शर्त यह कलाला का, मैंने आपको पहले बता दिया कि ना बीवी हो, ना बच्चे हूँ, ना माँ बाप हूँ, उस शख्स की दौलत जो है, माल जो है, वो कलाला में जाता है। तो फरमाया फलाहन निस्फ, उसकी बहन को उसमें से आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। अब आधा जो उसको दे दिया जाएगा, जो आधा हिस्सा वो कहाँ जाएगा, वो हुकूमत के पास, क्योंकि हुकूमत जो है ये सरप्रस्त होती है हर इंसान की। अगर कोई इंसान किसी का बीवी बच्चे कोई भी नहीं है, वारिस उसका नहीं है, उसके वालिदैन नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, और कोई भी ना हो, तो उसको अगर कोई शख्स कत्ल करता है या उसको मारता है, तो हुकूमत उसकी जिम्मेदार होती है, हुकूमत उन लोगों को पकड़ लेते हैं, तुमने इस शख्स को क्यों छेड़ा। तो इसलिए हकीमत जो बाकी आधा माल है वो वक्त हुकूमत के पास चला जाता है, क्योंकि वो असल उसकी वारिस होती है और उसने उसको उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया होता है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़, इसलिए असल वारिस जो है कि हुकूमत भी उसकी वारिस होती है। तो फिर फरमाया कि उसका उख्तो फलाहन निस्फ़, उसका आधा माल जो है ना भाई का, वो उसकी बहन का, जो बहन है वो उसको मिलेगा, और आधा हुकूमत के पास चला जाएगा। जो भाई है, भाई का आधा माल, अगर कोई बंदा फौत हो जाता है और सिर्फ उसकी एक ही बहन हो, तो उसकी बहन को उसकी विरासत में से आधा मिलेगा, और बाकी माल जो है वो हुकूमत के बैतुल माल, यानी हुकूमत को चला जाएगा, हुकूमत के पास चला जाएगा, बैतुल माल में चला जाएगा। तो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वाह यार सोहा, वाह हो वाह जो है ये गायब है, ज़मीर है, इसमें ज़मीर है, गायब है और मुज़क्कर के लिए है। तो इसके बीच में अल्लाह ताला ने फरमाया वाह यार सोहा, तो अगर उसकी बहन फौत हो जाती है, तो फिर इस सूरत में यह कि यारे सोहा, उसका वो सारा माल उसके भाई को दे दिया जाएगा। जो फौत होने वाली बहन है ना, उसका सारा माल जो है वो उसके भाई को दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत को कमतर किया गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो भाई है उसकी जायदाद आगे उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसको सबको तकसीम हो जानी है, और वो जिम्मेदार है उनके खर्चे का भी। तो उसके खर्चे की वजह से, अखराजात की वजह से ये उसको सारा माल इसलिए दिया गया है कि उसके ऊपर माली जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला ने मुकम्मल माली जिम्मेदारियां मर्दों के ऊपर डाल दी हैं। तो इसलिए इसको आधा हिस्सा औरत से ज्यादा दिया गया है, और औरत को आधा हिस्सा दिया गया कि इसके ऊपर माली जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने नहीं डाली। तो यूं इससे ये नहीं बनाना है कि औरत का दर्जा कम है, औरत कम तरह और मर्द ज्यादा है, मर्द बड़ा है, अजीम है, नहीं नौज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं कहना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाह यार सोहा इन लम यकुन लाहू वलादुन, इन लम यकुन लाहू वलादुन, इन लम यकुन लाहू वलादुन, अगर मरने वाली औरत की औलाद नहीं है, उसका खामत नहीं है, उसकी औलाद नहीं है, ये इस सूरत में अगर उसकी औलाद नहीं है, तो फिर उसका जो पूरे के पूरे विरासत का जो वारिस है वो उसका भाई होगा, वो उसका भाई होगा। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इन कानत उसना तईन, इनका आना था उसने तईन फलाहुमा सालुसान, अगर मरने वाले की दो बहनें हों, अगर मरने वाले की दो बहनें हैं कलाला में, तो उनको भी 16 साल है, तो उनको
2/3 जाएगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था आयत के शुरू में, आयत नंबर 11 में पढ़ा था इन कुन्ना निशान फौका उसना तही नहीं, कि अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो उनको 2/3, वो तो उनको 2/3 जाएगा, उनको 2/3 जाएगा। ठीक होगा जी, समझ आ गई। 2/3 उनका होगा मिम्मा तारा का, जो विरासत पीछे रह गई है। तो वह इन कानू इख्वतुन रिजालन व निसान, वह इन कानू इख्वतुन रिजालन व निसान। हाँ, अगर मरने वाले के बहन और भाई हैं, बहनें भी हैं और भाई भी हैं, ज्यादा हैं, 2, 1 और 2 से ज्यादा हैं, बहनें भी हैं भाई भी हैं, तो उनका वही कानून है जो अल्लाह ताला ने पहले आयत नंबर 11 के शुरू में बता दिया है कि लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि फलिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि, के औरत को आधा हिस्सा और मर्द को 2 औरतों के बराबर 1 मर्द को, और 1 मर्द के बराबर 2 औरतों को उस ज्यादा की तकसीम की जाएगी। युबय्यिनुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला ने ये चीज तफसीलन लोगों तुम्हें समझा दिया कलाला के बारे में। क्यों समझाई है? कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इसको तुम नहीं समझते, इससे तुम हट जाते हो, तो फिर याद रखो कि अंतदिल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तो अगर ताकि तुम दुनिया में टकरे ना खाते फिरो, भटकते ना फिरो, तदिल्लु गुमराह होकर ना, बेराह होकर ना फिरते रहो, तो अंतदिल्लु, ताकि तुम, अल्लाह ताला ने खुलकर तुमको ये वाज़े तौर पर समझा दिया ताकि तुम दुनिया में टकरे ना खाओ, भटकते ना फिरो। तो जो लोग इन अहकामात को नहीं मानते वो हमेशा दुनिया में भी टकरे खाएंगे और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है। इसलिए दोस्तों, अगर हमारा अल्लाह पर ईमान है तो इन हुक्मों को मानो, अल्लाह रिज़्क देगा। मत अपने बहनों भाइयों के हक को उनको दबाकर ना उनको खाओ कि ये खाने से इंसान मुकम्मल काफिर हो जाता है, उसका ईमान खत्म हो जाता है कि उसका अल्लाह पर ईमान रहा ही नहीं कि अल्लाह ने उसको रिज़्क देना है, वो तो जमीन और जायदाद से अपना रिज़्क ढूंढ रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी रहमत से, हमें अपने गुस्से से बचाए और अल्लाह हमसे कभी नाराज ना हो। हमारी यही सारी दौलत है, हमारा ईमान हमारी रोशनी, हमारा ईमान हमारी दौलत है। मैं आपसे हाथ बांध कर कहता हूँ कि कुरान पाक पढ़ो और फिरकों और हर चीज को छोड़ दो और कुरान को पकड़ लो मजबूती से। अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत को संवार देगा। अल्लाह मुझे और आपको कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।